Jigar, before I even start, I get countless comments under my videos saying कि भाई आपकी communication skills बहुत अच्छी हैं, please एक लंबी और detailed video बनाएं कि हम भी कैसे ये communication skills acquire कर सकते हैं. So let me tell you straight, I wasn't actually born with this. In fact, I was that overweight and lazy kid who couldn't even hold eye contact at family gatherings. I had zero confidence and I had absolutely no communication skills. And yet today, my entire brand, my communities, and my businesses are all built around this one thing, and that is the way I speak and the way I express myself. I went from being a fat, lazy, and unambitious kid to becoming a full-time entrepreneur who runs 4 businesses, who has his own office in Islamabad, and I was also able to surpass an audience of 400,000 plus followers across all platforms in just a matter of just above a year. एंड बाय द वे, अगर आप इस तरह के रिजल्ट्स मेरी इंडस्ट्री के अंदर बाकी किसी भी क्रिएटर को जाके देख लें जो एजुकेशन की नीश के अंदर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट वाले इस तरह के रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं इससे बहुत कम टाइम के अंदर, लेकिन अगर आप मेरी नीश के अंदर जाके देख लें तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी क्रिएटर नजर आएगा जिसको ऐसे रिजल्ट्स आए जो मुझे आए. एंड दीज वर ऑल बिल्ट ऑन द सोल प्रिंसिपल्स of my communication skills and the way I express myself. By the end of this video, you'll know about the exact 5 principles which I personally used, which turned me from that fat, lazy, and unambitious kid to the man that you see today. And this video is going to be entirely different from the generic speak louder, fake confidence kind of bullshit that you've heard before. Because everything that I'm about to share has been battle tested in my own life. So if you've ever struggled to speak up, be respected, or generally just get your point across, I want you to watch this video till the end, because this might just change the whole trajectory of your life. The first point that you have to understand is that confidence is not a gift, and it's actually just a muscle that you have to train, just like you have to train your muscles in the gym. ज़्यादातर लोग मेरी communities के अंदर इसी objection के साथ मेरे सामने आते हैं कि भाई हम भी confident होना चाहते तो हैं, लेकिन problem is कि हम introverted हैं. क्योंकि उन्होंने conveniently अपने ऊपर ये label लगाया हुआ है कि हम introverted हैं, इस वजह से वो इस चीज़ को comprehend ही नहीं कर पाते कि confidence is not actually inherent, it is acquired. Because you have to understand that confidence is like a receipt. जब आप दुकान पे जाते हो ना और जाके पैसे देते हो और चीज खरीदते हो और वो उसके बदले में आपको रिसीट देते हैं, इसी तरह जो है वो कॉन्फिडेंस इज द रिसीट दैट यू गेट इन एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दैट यू पुट योरसेल्फ थ्रू. अगर आप अपने आप के ऊपर कन्वीनियंटली ये लेबल लगाते रहोगे कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ और इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं नए लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली गैदरिंग्स के अंदर स्मॉल टॉक नहीं कर सकता, तो यू वोंट पुट योरसेल्फ थ्रू दैट एक्सपोजर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू गिव यू दैट रिसीट ऑफ कॉन्फिडेंस. अपने इर्द गिर्द तुम्हें जितने भी कॉन्फिडेंट लोग नजर आते हैं उनसे लाइक जेन्युइनली जाके पूछो कि हाउ डिड यू बिकम सो कॉन्फिडेंट. वो तुम्हें हमेशा यही जवाब देंगे कि यार मुझे एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला है, मैं बहुत डिफरेंट किस्म के लोगों के अंदर बैठा हूँ. आजकल के ज़माने में असल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई की जा रही है और बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज की जा रही है कि हम लोग बस अपनी एक आइडेंटिटी बना लें एंड फिर उसके लकीर के फ़कीर पूरी ज़िंदगी ताक़यामत बने रहें. कि अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया एज एन इंट्रोवर्ट तो इसका मतलब है कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी नए बंदे से जाके बात करने की, बिकॉज वी हैव नाउ जस्ट कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि वी आर अनफिट फॉर टॉकिंग टू न्यू पीपल, for putting ourselves through new experiences, for making small talk at family gatherings, and for generally putting ourselves through new experiences, because those new experiences are at the end of the day going to give you that confidence and those kinds of communication skills that you crave so much. हमारा मसला जनरली हमारी कौम का ये है कि हम लोग काहिल हो चुके हैं. हम लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर डालना ही नहीं चाहते, बिकॉज हम लोग इस चीज़ से यूज्ड हुए हैं कि हम पूरा दिन अपने बेड के ऊपर या अपने सोफे के ऊपर लेटे रहें, रील्स को स्क्रॉल करते रहें, उनके ऊपर कभी हंसें कभी तनकीद करें और पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ यही करते रहें. एंड फिर जो है वो अपने से बेहतर लोगों को देखें और सोचें कि यार इसने कैसे कर लिया, या इसके पास तो सिर्फ जेनेटिक्स थे, या फिर इसके पास तो कोई अनफेयर एडवांटेज था. When they just put themselves through the kind of exposure that you're not willing to put yourself through right now. मैं इतना ज़्यादा इस पैटर्न को नोटिस करता हूँ कि हमारी कौम को अगर कोई भी मुश्किल चीज़ बता दी जाए ना कि यार ये चीज़ जाके कर लो, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी इंप्रूव कर सकती है, लेकिन वो ज़रा सी अनकंफर्टेबल हो तो वो इतने काहिल हो जाते हैं कि वो अपने आप को इतना कन्वीनियंटली टॉक आउट करते रहते हैं उन सिचुएशन से, एंड इस वजह से फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ नहीं होती. देखो, आई एम सेइंग दीज थिंग्स बिकॉज मैं भी पर्सनली इन्हीं चीज़ों के थ्रू गुजरा हूँ. एंड मैं भी जब अपने मेडिकल स्कूल के अंदर भी आया था, जब मैं नया अपने ए लेवल्स के अंदर भी आया था, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम्स होते थे. व्हेन आई स्टार्टेड माय ए लेवल्स तो मेरे सामने पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो एक को एजुकेशन की इन्वायरमेंट थी, एंड आई डिडंट नो हाउ टू कन्वर्स विद वुमेन. आई हैड नेवर बीन अराउंड गर्ल्स एवर बिफोर, एंड मैं सोचता था कि यार इन लोगों से मैं कैसे जाके बात कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स व्हेन आई
वाज अराउंड women as well, तो मैं भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता था। मेरे हाथों से पसीने छूटने लग जाते थे, मेरे हाथ कांपने लग जाते थे। मेरे यहाँ पे माथे पे बहुत मसला है कि मेरे यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरे साथ तो इस तरह होता था लाइक यहाँ पे इतना ज़्यादा पसीना आने लग जाता था। बल्कि इससे रिलेटेड मुझे अपनी एक स्टोरी याद आती है कि ड्यूरिंग माई ए लेवल्स बेसिकली देयर वाज दिस गर्ल दैट आई वाज रियली इनटू, जो देखने में जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी। तो वन डे आई थॉट कि यार अच्छा देखो, आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पूरी पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर obsess करता रहूँ या पूरे लेवल्स जो है वो इसको देखने में गुजार दूँ, या फिर आई कैन जस्ट गो एंड टॉक टू हर। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बुरा ना। तो एक दिन मैं अपनी यूँ शर्ट जो है वो सही ठीक अच्छे तरीके से इस्त्री करके अपनी ऊपर टाई लगा के, सही है, शर्ट के स्लीव्स जो है वो पूरे नीचे तक बंद किए हुए, घड़ी शड़ी पहन के अब्बू की, और चला गया उस लड़की से बात करने के लिए ना। तो मेरे साथ क्या हुआ कि आई वेंट अप टू हर, एंड क्योंकि मेरे अंदर सोशल अवेयरनेस नहीं थी और मैंने पहले कभी लड़कियों से बात नहीं की हुई थी, मैंने बस उससे जाके बोला कि अस्सलाम वालेकुम, ज़ेर, नाइस टू मीट यू, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने उसके साथ आई हेल्ड द ड्राइएस्ट कॉन्वर्सेशन इन द वर्ल्ड, वेयर आई जस्ट आस्क्ड हर कि यार तुम किस सेक्शन में हो। शी टोल्ड मी अबाउट विच सेक्शन शी वाज इन, एंड फिर उससे मैंने इसी तरह करके एक दो सवाल पूछे। इट फेल्ट लाइक अ ड्राई इंटरव्यू, एंड उसके बाद आई वाज लाइक यार अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं और क्या स्मॉल टॉक करूं, तो आई जस्ट turned around and started walking the other way. While I was walking the other way, पिछले दिन बेसिकली बारिश हुई थी। तो क्या हुआ कि हमारा ग्राउंड जो था वो सारा बहुत सिवियर किस्म का मडी हुआ था, कीचड़ जमा हुआ था ना उसके ऊपर। तो मैं वापस जो है वो अपने दोस्तों की तरफ वॉक करते हुए जा रहा था, एंड क्या हुआ कि आई स्लिप्ड इन द मड एंड आई फेल ऑन माई एस। तो इमेजिन कि एक लड़का इतना बन ठन के और तैयार होके अपने नए नवाले यूनिफॉर्म के अंदर गया हुआ अपनी पसंदीदा औरत से बात करने के लिए, एंड उससे वॉक अवे करते हुए वो स्लिप कर जाता है और कीचड़ के अंदर गिर जाता है। मेरी जो सफ़ेद कलर की शर्ट थी, मेरी जो बेज कलर की पैंट्स थी, दे वर ऑल सॉइल्ड, दे वर ऑल कम्प्लीटली ruined, एंड दिस वॉज प्रॉबली द वर्स्ट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दैट आई हैव एवर बिन थ्रू। लेकिन उस मोमेंट में जो है वो व्हेन माय फ्रेंड्स वर लाफिंग एट मी, एंड जब मेरे साथ शुगर लग रहा था कि यार हाँ इसको देख के जाके बात करने के लिए चला गया था एंड इसके साथ तो ये हो गया, तो इन दैट मोमेंट आई आस्क्ड माई सेल्फ कि यार आइदर आई कैन बी समवन हु जस्ट बिकम्स इमोशनली अफेक्टेड बाय दिस, एंड इस वजह से जो है वो मैं कभी भी ज़िंदगी में दोबारा ये काम नहीं करूँगा किसी नए बंदे से जाके बात करना, इवन इफ इट्स नॉट यू नो अ रोमांटिक प्रॉस्पेक्ट। या फिर ये हो सकता है कि मैं बोल सकता हूँ कि यार नहीं, आई विल डू दिस अगैन, आई विल पुट माई सेल्फ थ्रू मोर एंड मोर एक्सपोजर अगैन। बिकॉज यार देखो, जब आप किसी नए बंदे से जाके बात करते हो, एंड मोस्ट प्रॉबेबली इफ यूर इन यूनिवर्सिटी और इफ यूर वर्किंग अ जॉब, तो आप लोगों के साथ इस वक्त ऐसा होगा कि आपकी वर्क स्पेस या यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त एक ऐसी फीमेल होगी जिस पे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते होगे। तो इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग ओवर हर दिस मच, व्हाई डोंट यू जस्ट गो अहेड एंड टॉक टू हर? Instead of looking at her every single day and fantasizing and romanticizing and infatuating about her, why don't you just go and talk to her? I'm not telling you to do anything disrespectful. I'm not telling you to do anything inhumane. I'm not telling you to do any of those things. I'm just telling you कि यार आप जाके उससे सलाम करो एंड उससे एक नॉर्मल बंदे की तरह बात करो। हमारा ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज कर देते हैं। हम लोग क्योंकि ये जो लड़के होते हैं जनरली दे फेस दिस प्रॉब्लम क्वाइट अ लॉट कि दे वॉच अ लॉट ऑफ लस्टफुल कंटेंट, दे वॉच अ लॉट ऑफ एडल्ट कंटेंट, एंड इस वजह से उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लड़कियों को देखा हुआ है वो देखा हुआ ही सिर्फ एक सेक्शुअल मैनर के अंदर है। एंड इस वजह से जब भी उनके दोस्त उन्हें बोलते हैं कि यार जाओ उससे बात कर ले, तो वो घबरा जाते हैं। एंड इवन अगर वो लड़कियों के सामने खड़े भी हों तो दे कांट इवन मेक आई कॉन्टैक्ट विद दैट गर्ल, they can't even make a natural conversation with that girl, all because the only context that they've ever seen women in is in a sexual one. They can't humanize women. They have always objectified women, and इस वजह से वो अपने आप को ये uncomfortable experience दे ही नहीं पाते. But you have to understand कि यार ये uncomfortable experiences are going to determine the kind of person that you become 2, 3, 4, 5 years from now. And I want you to like genuinely, you know, every single day अपना ये गोल बनाओ कि यार मैं आज एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अपने दिन के अंदर इंटीग्रेट करूँगा। whether it's going and talking to your crush, whether it's approaching that big guy in the gym, whether it's going to the gym when you don't feel like it, but यार ये uncomfortable actions जो है ना वो basically तुम्हारे ऊपर ना जैसे एक तलवार के ऊपर खराशें मारी जाती है ना, एंड फिर वो at one point चमक पकड़ लेती है, तो उसी तरह जो है वो ये खराशें तुम्हें भी झेलनी पड़ेंगी, एंड तभी तुम जो है वो एक सीजन्ड और केपेबल किस्म के मर्द बनोगे। तो एवर सिंस दैट एक्सपीरियंस दैट आई वेंट थ्रू इन माय ए लेवल्स, मेरी बहुत मैसिव ग्रोथ हुई है। एंड इट्स नॉट लाइक कि हाँ बस मैंने एक दिन जाके उस लड़की से बात किया एंड उसके बाद द नेक्स्ट डे माई लाइफ चेंज, नहीं, बट इट डिड सेट फॉरवर्ड अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स
where it became a pattern for me to go ahead and approach uncomfortable situations like I was comfortable in them. Generally आपकी पूरी लाइफ के ऊपर इस वजह से बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है because you've done one uncomfortable thing. इस वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर दूसरे realms के अंदर भी uncomfortable चीज़ें करते हो. आप कंटेंट बनाना शुरू कर देते हो बिकॉज यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ व्हाट पीपल विल से अबाउट यू बिकॉज यू आर सो सिक्योर इन योरसेल्फ. आप जिम के अंदर जो है वो किसी ह्यूज बंदे से जाके बात करने लग जाते हो और उससे पूछने लग जाते हो कि यार हाउ डिड यू गेट सो बिग. आप अपने बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हो बिकॉज यू टेक अनकंफर्टेबल एक्शन. तो देखो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी के अंदर डर के आगे ही जीत है. अगर तुम डर के पीछे छुपे रहोगे एंड डर के पीछे जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लोगे एज अ लेबल, तो फिर जो है वो तुम टिमिड ही रहोगे एंड फिर जो है तुम्हारे से आगे वो लोग निकलते रहेंगे जो तुम्हारे से कम केपेबल हैं लेकिन वो अनकंफर्टेबल एक्शन ले लेते हैं डिस्पाइट फीलिंग द फियर. बट तुम जो है वो फियर फील करने की वजह से बेसिकली उस एक्शन से बैकआउट कर जाते हो. बिकॉज आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन समवन हु इज करेजियस एंड समवन हु इज अ कावर्ड. कावर्ड को भी फियर फील होता है, करेजियस बंदों को भी फियर फील होता है. डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ ये है कि जो करेजियस बंदा होता है वो फियर फील करने के बावजूद भी एक्शन ले लेता है. देखो योर फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, योर फीलिंग्स शुड बी फेल्ट, बट यू शुडंट लेट योरसेल्फ बी आइडेंटिफाइड बाय योर फीलिंग्स. Yes, feel that fear when you're going up to that woman. Yes, feel that fear when you're entering the room for your interview. Yes, feel that fear when you're about to make that big move in business. But take that uncomfortable action anyway. I swear that you'll thank yourself after 3 years, after 5 years. एंड तुम इस वीडियो पे वापस आके बोल रहे होगे कि थैंक यू सो मच उज़ैर भाई कि आपने हमें इस चीज़ के ऊपर एम्पावर कर दिया कि अनकंफर्टेबल एक्शन ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज़ कि कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट एक्चुअली अबाउट वर्ड्स, दे आर जस्ट अबाउट एनर्जी. ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि दे जस्ट नीड टू रीड मोर बुक्स, दे जस्ट नीड टू लिसन टू मोर पॉडकास्ट इन ऑर्डर टू बिकम समवन हु इज़ एन एलोक्वेंट कम्युनिकेटर. But that couldn't be further from the truth. Yes, vocabulary is important. Yes, English fluency is important. But ये सारी चीज़ें flow तब तक नहीं करेंगी जब तक तुम एक relaxed state के अंदर नहीं होगे. What does a relaxed state exactly mean? मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ. I'm breathing pretty fully, but at the same time I can effortlessly communicate to you all because of the reason कि I am in a pretty relaxed energy right now. ज़्यादातर लड़कों का और लड़कियों का भी ये प्रॉब्लम होता है कि स्पेशली मेरी कम्युनिटीज़ के अंदर मैं इतने ज़्यादा लोगों को देखता हूँ जो हमारे असाइनमेंट्स करते हैं, जो मैं असाइनमेंट्स अपनी कम्युनिटी के अंदर कारवां के अंदर लोगों को देता हूँ कि यार ये असाइनमेंट्स करो, एंड उसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स विद इन 30 डेज़ मिलते हैं. तो खैर वो जब असाइनमेंट्स लोग कर रहे होते हैं तो उनके थ्रू मैं देख रहा होता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट आई सी पीपल मेक इज़ दे ब्रीद इन सच अ शैलो वे. वो कोशिश कर रहे होते हैं कि यार वो कैमरे के ऊपर कोई भी गलती ना कर दें, इस वजह से वो इतना तेज़ बोलने लग जाते हैं. उन्हें लग रहा होता है कि यार उनकी सेंस ऑफ परसेप्शन इतनी ज़्यादा सवेयर किस्म की फ्लॉ हुई हुई है, एंड इस तरह करके बोल रहे होते हैं एंड दे आर सो एंग्शियस व्हेन दे आर स्पीकिंग टू द कैमरा. व्हाट दैट्स टेलिंग मी इज कि यू आर गोइंग टू कैरी दैट लेवल ऑफ एंग्शियसनेस टू योर रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस एज वेल. It doesn't matter if you sometimes stammer on your words. It doesn't matter if sometimes आप तेज़ बोलते हुए stutter कर जाते हो. That is normal. That happens with me as well. I'm not going to sit here and pretend and say कि भाई मैं ये वीडियो बनाते हुए जो है वो कहीं पे भी stutter नहीं करूँगा. For sure मैं करूँगा. It is completely natural. And it is something that you're going to see across the best communicators in the world. बट आप उन सब के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न देखोगे वो ये नहीं है कि वो स्टटर नहीं करते या वो स्टैमर नहीं करते. उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है. तो इसके लिए व्हाट आई वांट यू टू स्टार्ट डूइंग इज़ कि जब भी किसी बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो बी इन योर रिलैक्स्ड एनर्जी, एंड यू डू दैट बाय बेसिकली ब्रीदिंग फ्रॉम योर डायफ्राम एंड नॉट ब्रीदिंग शैलोली. यानी कि अभी जब तुम किसी बंदे से बात कर रहे होते हो ना, स्पेशली जब किसी नए बंदे से बात कर रहे होते हो, तो बिकॉज आपका फाइट और फ्लाइट मोड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो उसकी वजह से योर हैंड स्टार्ट शेकिंग, सर से पसीने, एंड आपका ब्रेथ जो है वो बहुत शैलो हो जाता है. आप इस तरह करके बेसिकली ब्रीथ करने लग जाते हो, एंड इस वजह से फिर जब आप किसी बंदे से बात कर रहे होते हो तो यू कांट कम्युनिकेट इन दैट अमेजिंग मैनर दैट यू विजुअलाइज्ड इन योर हेड कि यार मैं तो इसे जाके इस तरह करके इंचैंट कर दूंगा अपने अल्फाज से. एक्चुअली व्हाट जस्ट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आप उस बंदे या लड़की के पास जाते हो एंड यू जस्ट रन आउट ऑफ थिंग्स टू से. You don't know where to steer this conversation next, and it is all because
you're too anxious. You're worried about what that person will think about you. You're not worried about if you like that person or not. Because this is a simple reframe tactic in addition to being in your relaxed energy, and that is be so secure in yourself कि whenever you're approaching someone new, so don't approach that situation in the mind frame कि I'm going to see if they like me or not. You're actually going to see if you like them or not. जब भी किसी बंदे के पास या किसी लड़की के पास जा रहे हो तो go with this mindset कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ इस इंसान के पास कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे ये इंसान पसंद आता है कि नहीं, नॉट द अदर वे अराउंड. बिकॉज इफ़ यू डू इट द अदर वे अराउंड तो तुम्हारे साथ यही होगा कि तुम्हारी शैलो ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज यू आर सो ईगर टू मेक एन इम्प्रेशन. मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की हुई है कि स्पेशली इन पीपल जो बचपन के अंदर और एडोलेसेंस के अंदर थोड़े से ओबीस या ओवरवेट होते हैं ना, तो बिकॉज देव आइडेंटिफाइड एज पीपल हु आर ओवरवेट एंड ओबीस, इस वजह से वो बेसिकली क्योंकि बच्चे होते हुए और एडोलेसेंट होते हुए उन्हें नोटिस होने के लिए ज़्यादा बात करनी पड़ती थी, ज़्यादा जोक्स बनाने पड़ते थे बिकॉज उन्हें पता होता था कि देर इनसिक्योर इन दमसेल्व्स एंड देर गोइंग टू बी परसीव्ड एज समवन हु इज़ लो वैल्यू. तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो अपने आप को बेसिकली जोकर बना देते थे. तो इवन इन देयर एडल्ट ईयर्स व्हेन दे एंड अप लूजिंग दैट वेट एंड बिकमिंग एन एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, they still approach people with the same kind of fat kid energy where they just try to be the joker in the group and try to make a joke out of themselves while completely sabotaging their own self-respect, when that is not something which I want you to do. I want you to approach situations in a way where you're going to see if you like the other person or not and not the other way around, because in that way you're going to take the whole power in your hands and not leave it up to them. And by the way, a lot of people say कि यार अच्छा अगर मैं चला गया इस इंसान के पास and उसने मुझे आगे से रिजेक्ट कर दिया या फिर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज दी थी तो क्या होगा. That's completely fine and that is natural and they have a right to do that. But आपने कभी भी इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना कि यार इसका तो मतलब है कि मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही एक फजूल इंसान, मेरे मुंह से स्मेल आती होगी या मुझे तो बोलना ही नहीं आता, यार क्या बकवास है यार, मैं आइंदा कभी भी किसी के पास नहीं. Sometimes you have to understand that the person might just not like you inherently as a person and that's completely fine. That is their problem and not your problem. Yes, you should do introspection and ask yourself कि यार क्या मेरी फैशन सेंस अच्छी है, क्या मैं अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रूम रखता हूँ, क्या मैं बोलते हुए अच्छे हैंड जेस्चर्स करता हूँ, क्या मैं बोलते हुए जो है वो रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता हूँ. एंड इफ़ द आंसर टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स आफ्टर ऑल ऑफ योर इंट्रोस्पेक्शन is कि yes you do all of these things and they still don't like you, तो that is their problem respectfully, not yours. इस वजह से don't fret over this कि एक लड़की से तुम बात करने के लिए गए थे and उसने तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई. That's completely normal. I don't want you to start being angry at the girl or start being apprehensive or start being disrespectful towards the girl. That is the most low life thing that you can ever do. I want you to just introspect and be okay with it. Be outcome independent. Don't be the kind of guy who is too outcome dependent कि यार मैं अगर इसके पास जा रहा हूँ एंड अगर इसने जो है वो मुझे रिंग नहीं पहना दी और मेरे से शादी नहीं कर ली तो तब तक जो है वो ये सिचुएशन एक विन नहीं हो सकती. That is not true. तुम्हारी यंगर ईयर्स के अंदर what you need most is exposure, because you also have to understand कि देखो लड़के होते हुए ना तुम्हारे इन ईयर्स के अंदर तुम्हारी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उन लड़कियों की है. लड़कियां अपनी यूथ के अंदर अपने प्राइम ईयर्स के अंदर हैं बट तुम अभी यहाँ पे हो. जब तुम अपनी लेट 20s और लेट 30s के अंदर आओगे तुम्हारी वर्थ एक्चुअली तब डेवलप होगी. और कब डेवलप होगी? जब तुमने इन सारे ईयर्स के अंदर अपनी 20s के अंदर अपने आप को सही तगड़ा किस्म का एक्सपोजर दिया होगा. तो यार मत डरो इस तरह की सिचुएशन से. इफ़ यू सी अ गर्ल दैट यू लाइक इन योर यूनिवर्सिटी, इन योर वर्क स्पेस, गो अहेड एंड अप्रोच हर, गो अहेड एंड टॉक टू हर. बी रिस्पेक्टफुल, don't be apprehensive, don't be angry if she turns around and doesn't talk to you. Just introspect and be happy over the fact that you took that uncomfortable action and actually put yourself through that amazing exposure. हो सकता है तुम सोच रहे हो कि यार मैं यूनिवर्सिटी में भी नहीं हूँ या फिर मैं जॉब पे भी नहीं जाता, मैं तो घर से काम करता हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ और समथिंग अलोंग दोज लाइंस. या फिर तुम कहते हो कि यार जनरली मैं इस वक्त रेडी ही नहीं हूँ टू पुट माई सेल्फ थ्रू दैट अनकम्फर्टेबल एक्सपोजर. तो व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू इज़ कि इस स्टेप 1 से पहले तुम एक स्टेप 0.5 ले सकते हो जिससे तुम रेडी हो सकते हो फॉर दोज अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस.
जिससे तुम रेडी हो सकते हो अपनी पसंदीदा औरत से बात करने से पहले, जिससे तुम रेडी हो सकते हो अपने इंटरव्यू से पहले, जिससे तुम रेडी हो सकते हो अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए, एंड दैट इज़ टू ज्वाइन माई प्राइवेट कम्युनिटी कारवा। कारवा के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम लोग बेसिकली असाइनमेंट्स करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स से, जिससे हम उनसे इस तरह की वीडियोज़ बनवाते हैं, एंड उन वीडियोज़ के अंदर बेसिकली उन्हें प्रॉम्प्ट करते हैं टू डू सर्टन टास्क्स, एंड उसकी वजह से फिर मैं डेली बेसिस पे उन सब वीडियोज़ को रिव्यू करके उनकी गलतियाँ निकालता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करो। इसकी वजह से जो है वो मेहदी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ऑन डे 1 ही हैड अ रियली थिन वॉइस, बट विद इन 30 days ही वॉज एबल टू चेंज हिज वॉइस पिच कम्प्लीटली, एंड इसके अलावा उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने इंप्रूव हुए, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई, उसकी फ्लुएंसी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई। या फिर तुम काइम की एग्जांपल ले सकते हो, जो पहली दफ़ा जब कम्युनिटी के अंदर आया था तो ही वॉज स्ट्रिकल्ड विद नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स, and the very first day he came inside of the community, I empowered him and told him to do certain things and change some limiting beliefs that he had. When he let go of those negative limiting beliefs, he actually hired a VA in his business, and because of that वो actually अच्छे पैसे भी कमाना शुरू हो गया। इन स्टूडेंट्स की मैं तुम्हारे सामने स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, और इसके अलावा इतने ज़्यादा काउंटलेस स्टूडेंट्स हैं। We do live workshops, we do weekly sessions जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोफेशनल कोचेस रखे हुए हैं, and honestly it is one of the best communities that I've ever made, and I think that you should really join it। and और इस वक्त एक लिमिटेड टाइम के लिए हम कारवा के ऊपर एक प्रोमो कर रहे हैं, जिसकी वजह से यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शंस, देयर इज जस्ट वन अपफ्रंट प्राइस। so if you're interested in that, you should go ahead and join it. If you're not, so that's completely fine as well. You can find all of these resources on YouTube as well, and I'll try my best to upload as much content about confidence and communication skills as I can. लेकिन जैसे कि आपको पता है कि वीक के अंदर 1 या 2 वीडियोस ही लगती हैं, तो if you want to fast track your progress, so you can join the community. Point number 3 is status is actually tied to how you carry yourself. अपने आप को कैरी करने का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? अपने आप को कैरी करने के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्या आप ओपन बॉडी लैंग्वेज रखते हो कि नहीं? दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है आपकी फिजिक है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है इज़ द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू वेयर, एंड डू यू हैव अ डिसेंट सेंस ऑफ फैशन और नॉट। एंड चौथी चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है वो आपकी पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। देखो, मैं ये चीज़ ऑन अ डेली इतनी ज़्यादा देखता हूँ कि हम देसीज़ के अंदर एक बहुत कॉमन किस्म का प्रॉब्लम ये है कि हमारी डाइट्स आर एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड टू मेक अस लेजी एंड प्रोफेशनल प्रोक्रेस्टिनेटर्स। अगर आप वाइट लोगों की डाइट्स देखो ना, एंड स्पेशली ये जो वाइट फार्मर्स टाइप होते हैं या फिर वाइट कंट्रीमैन टाइप होते हैं, इन लोगों की एग्जैक्टली डाइट्स क्या होती हैं? इन लोगों की डाइट्स होती हैं मीट, एग्स, मिल्क, चीज़, मीट, मतलब ये चीज़ें होती हैं बस। एंड इसकी वजह से उनकी फिजिक्स को देखो और हमारी फिजिक्स को देखो, दे आर टॉलर देन अस, they have wider shoulders than us, they have slimmer waists than us, they have quite a lot more muscle mass than us, they have much more chiseled faces than us, and just because of the fact कि हम लोग इतना ज़्यादा इमोशनली अपनी डाइट्स के साथ अटैच हुए हुए हैं और इनको चेंज करने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस ही नहीं पोजेस करते, इस वजह से हमारी फिजिकल फिटनेस ख़राब होने की वजह से हमारे इंप्रेशंस ही ख़राब होते रहते हैं। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ नॉर्मल एडवाइस एंड देयर इज़ सम एबनॉर्मल एडवाइस। मेरे से आपको कभी भी नॉर्मल एडवाइस नहीं सुनने को मिलेगी, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी नॉर्मल, बिकॉज व्हेन आई वांट यू टू बी नॉर्मल then you're just becoming a part of the 99%. I want to give you abnormal people advice because I want you to be a part of the 1%. तो the abnormal advice would be कि अपने ये जो घर के खाने हैं ना, इनको लिमिटेड कर दो। ऑनेस्टली इनको लिमिटेड कर दो। ये जो सालन, रोटी, चावल हैं तेल के अंदर लदे हुए, इनको खाना बंद कर दो या फिर खाना कम कर दो। व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू इज़ कि आप प्रोटीन को बहुत ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करो। इवन अगर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के अंदर जो है वो एग्जिस्टिंग खाने को थोड़ा सा कम करके अगर अंदर प्रोटीन सोर्सेज ऐड करना शुरू कर देते हो तो उससे बहुत आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यू विल स्टार्ट fitting in your clothes a lot snugger. You will start looking a lot better in your clothes. You will start feeling a lot more, in a high energy state. ऑन अ डेली मेरे साथ इस तरह होता है, मैं लड़कों को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर जो इतना ज़्यादा लो एनर्जी के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंड मैं दोबारा बोलता हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ योर डाइट। बिकॉज जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट ही नहीं करते तो आपके साथ यही होता है कि आप सोफे के ऊपर बैठे रहते हो, आप रील स्क्रॉल करते रहते हो और उन रील्स के ऊपर तनकीद करते रहते हो। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपकी ज़ात को और आपकी ज़िंदगी को और
आपके इर्द गिर्द के लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. इंस्टेड व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ जस्ट स्टार्ट इंटीग्रेटिंग प्रोटीन एंड स्टार्ट गोइंग टू द जिम एवरी सिंगल डे, इवन इफ इट्स जस्ट 5 days a week. इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आता है कि आई सी सो मेनी पीपल जो जिम जाते तो हैं लेकिन दे ट्रेन लाइक बिचेस, टू बी ऑनेस्ट. मतलब दे ट्रेन लाइक एब्सोल्यूट पैंसीज. तो I don't want you to do that. I want you to, when you actually do go to the gym, तो train insane. सही है, अच्छे तरीके से ज़्यादा वॉल्यूम रखो, ज़्यादा इंटेंसिटी रखो एंड सही तरीके से अपने आप को थकाओ. इससे तुम्हारी नींद के मसले ख़त्म होंगे, इससे तुम अपने कपड़ों के अंदर बेहतर लगने लगोगे, इससे तुम्हारे एनर्जी लेवल्स रेज करेंगे, इससे तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होगी, तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होगी, तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन आएगा, लोग तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे. तो isn't that worth it? दूसरी चीज़ आ जाती है फैशन सेंस की. अब फैशन सेंस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव टू एवरीवन. मैं पर्सनली शलवार कमीज़ और ये बटन डाउन शर्ट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. आपने कोई ऐसी चीज़ पहननी है विच जस्ट मेक्स यू फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट. आई नो कि वेयरिंग बटन डाउन शर्ट्स एंड शलवार कमीज मेक मी फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट. इस वजह से यू शुड वेयर समथिंग दैट मेक्स यू फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट. अगर आजकल के फैशन ट्रेंड्स आपको बोलते हैं कि कोई ऐसी चीज़ पहनो जिसकी वजह से, जिसको आप जब ट्राई करते हो तो आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तो देन यू शुडंट अबाइड बाय फैशन ट्रेंड्स. यू शुड अबाइड बाय व्हाट मेक्स यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे you're not living to abide by fashion trends. You're living to abide by your own identity and your own empowerment. So if it's button down shirts, wear button down shirts. If it's relaxed fit tees, wear relaxed fit tees. If it's baggy pants, wear baggy pants. If it's skinny jeans, wear skinny jeans. If it's tailored pants, wear tailored pants. But it depends on what makes you feel most confident and most comfortable in your own skin. And if you start doing that, so you will start exuding a level of energy, even if you wear skinny jeans. आजकल के दिनों के अंदर भी. तो अगर आप अपनी एनर्जी इस तरह पोर्ट्रे करते हो कि you're so comfortable in yourself, then people will not really care if you're abiding by fashion trends or not. Because I see so many people जो आजकल के टाइम के अंदर फिटेड कपड़े पहनते हैं एंड वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, लोग उन्हें भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. एंड आई सी सो मेनी पीपल जो बैगी कपड़े पहनते हैं एंड उन्हें भी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. इट्स ऑल अबाउट वेयरिंग समथिंग दैट मेक्स यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट. मेरे ज़ाती तौर पे बटन डाउन शर्ट्स, शलवार कमीज इज़ द वे टू गो फॉर मी. तीसरी बात आ जाती है बॉडी लैंग्वेज की. बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी बॉडी लैंग्वेज पोर्ट्रे करना की भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे साथ ऑन रेगुलर बेसिस इस तरह होता है कि आई टेक इंटरव्यूज़ फॉर स्टाफ. मैं रोज़ के हिसाब से नई किसी बिजनेस डील के अंदर घुसा हुआ होता हूँ. कोई मेरी गूगल मीट के ऊपर कॉल हो रही होती है किसी क्लाइंट के साथ या कोई ऑन बोर्डिंग हो रही होती है. एंड इन सब के अंदर जो है वो मैं एक चीज़ जिसके ऊपर खसूसी तौर पे फोकस कर रहा होता हूँ वो है गिविंग ऑफ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड नोटिसिंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम मी. इसके लिए मैंने एक किताब पढ़ी थी व्हाट एवरी बॉडी इज सेइंग बाय जो नवारो एंड दैट इज अ बुक दैट आई वुड रेकमेंड टू एब्सोल्युटली एवरी वन ऑफ यू गाइस. बिकॉज उसके अंदर जो आप नॉन वर्बल्स को समझोगे, जो आप समझोगे कि जब आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज पोर्ट्रे करनी है तो कैसे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखना है, that is honestly going to be so worth it for you guys. And I would 100% recommend all of you guys to go ahead and read that book because it has been written by a former FBI agent. And the kinds of experiences that he's described, the kinds of non-verbal cues that he's told people about in his book is absolutely invaluable. So you should definitely go ahead and read that book. चौथी बात आ जाती है पर्सनल ग्रूमिंग और फ्रेग्रेंसेस की. पर्सनल ग्रूमिंग, आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान के अंदर 90% लोग जिनसे मैं मिलता हूँ उनकी अप टू द मार्क नहीं होती. उनके बाल सही तरीके से नहीं बने हुए होते, उनकी स्किन के ऊपर जो है वो धब्बे पड़े हुए होते हैं, उनकी दाढ़ी के ऊपर अच्छे तरीके से ख़त नहीं बना हुआ होता, वो अच्छे तरीके से डिसेंट किस्म की ज्वेलरी या फिर एक्सेसरीज़ नहीं पहनते, वो अपने नाखून नहीं काटते, वो अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते. एंड ये सब बहुत मैसिव किस्म के प्रॉब्लम्स हैं. आई विल टेल यू ब्रीफली अबाउट मैं पर्सनली कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल करता हूँ. नंबर 1 इज़ कि सुबह के टाइम पे एक रोज़ के हिसाब से शावर लेना आप सब के लिए एक नॉन नेगोशिएबल है. अब शावर के अंदर भी एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि सिंपली साबुन की टिक्की लेके अपने ऊपर मल के कहते हैं कि अच्छा मैंने नहा लिया, लेकिन एक्चुअली दैट डजंट मीन कि यू एक्चुअली शावर्ड. व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि एक लूफा आता होता है, लूफा को यूज़ करो एंड उससे अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से स्क्रब करो ताकि ऊपर से ये जो धूल मिट्टी है ये अच्छे तरीके से मिट जाए. एंड जब आप बाहर पब्लिक के अंदर जाते हो, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर जाते हो, तो आपके पास से स्मेल ना आ रही हो. बिकॉज आई सी सो मैनी पीपल मैन, पाकिस्तान इंडिया के अंदर जनरली यही प्रॉब्लम है. पीपल डोंट टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल हाइजीन एंड स्पेसिफिकली आर्मपिट्स.
आर्मपिट्स के अंदर लोग कोई भी एंटी पर्सपिरेंट नहीं लगाते एंड इस वजह से क्या होता है, लोगों से बहुत बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है. आई डोंट वांट यू टू डू दैट व्हाटसोएवर. आई वुड रेकमेंड टू यू, एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सरशिप बाय द वे, मैं पर्सनली ओल्ड स्पाइस यूज़ करता हूँ, उनकी डिओड्रेंट स्टिक्स होती हैं. आई जस्ट पॉप दोज अंडर माई अंडर आर्म्स एंड उस वजह से जो है वो पूरे 24 आवर्स के लिए आई डोंट हैव टू फेस एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ पे मेरे स्वेट की वजह से जो है वो मेरे पास से कोई स्मेल आ रही हो. वैसे जनरली मेरे साथ ये है कि आई एम क्वाइट स्वेटी पर्सन इन द जिम, लेकिन इस वजह से ये प्रॉब्लम टैकल हो जाती है. एंड आई वांट यू टू मेक दैट स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ बिकॉज इट इज़ 100% वर्थ इट एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज शुड बी यूजिंग एन एंटी-पर्स्पिरेंट. तीसरी बात आ जाती है ओरल हाइजीन की. ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इज़ एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल फॉर यू. आई सी सो मेनी पीपल जिनकी ओरल हाइजीन इतनी बुरी होती है. मेरे साथ भी पर्सनली इस तरह होता था. मेरी ओरल हाइजीन पहले बहुत ख़राब होती थी. मैं कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ और इस वजह से मेरे दांत जो है वो बेसिकली बहुत सिवियर किस्म के स्ट्रेंड होते थे. एंड उसके लिए बेसिकली आई यूज़ टू वॉच दिस क्रिएटर्स वीडियोज़. जो फिटेक्स फेयरलेस एक क्रिएटर है, उसकी लाइव स्ट्रीम्स होती थी और उसके अंदर वो देखता होता था लोगों के कि यार दांत काफ़ी लोगों के बहुत स्ट्रेंड होते थे और वो सबको बोलता था कि यार आप क्रेस्ट 3D वाइट स्ट्रिप्स लगा लो ना. तो एक दिन मैंने भी सोचा कि यार मैं भी ये क्रेस्ट 3D वाइट स्ट्रिप्स जो है वो ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर लेता हूँ. मैंने जाके गूगल के ऊपर सर्च किया क्रेस्ट 3D वाइट स्ट्रिप्स के बारे में एंड आई डिस्कवर्ड कि वो पाकिस्तान के अंदर 19,000 PKR की मिलती हैं. एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है फॉर जस्ट गेटिंग योर टीथ वाइटर. फिर मैंने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स देखी हुई थी जो 1,000 रुपये की 1,500 रुपये की मिल रही होती थी एंड मैं उनको भी देखता था एंड मैंने उन्हें ऑर्डर करके ट्राई भी किया. लेकिन मैंने ये देखा कि यार उनके कोई टेंजिबल किस्म के रिजल्ट्स नहीं है, वो सिर्फ अपने मार्केटिंग मसल पे चल रहे हैं. तो इन दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं इसके ऊपर अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ एंड इसके लिए आई स्टार्टेड माई ओन ई-कॉमर्स वेंचर बाय द नेम ऑफ इटर्नल. इटर्नल बेसिकली 7 डेज़ के अंदर आपको वाइटर टीथ देती हैं एंड आपको रिजल्ट्स जो है वो अपने सामने इस वक्त नज़र आ रहे होंगे. ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने खुद बनाई है. इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप व्हाटसोएवर. इट इज़ अ प्रोडक्ट विच आई हैव मेड बाय माई सेल्फ. मैंने खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, पैकिंग करवाई है एंड दिस प्रोडक्ट इज़ ऑनेस्टली सो गुड कि आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स. तो इफ़ यू गाइज ऑल्सो स्ट्रगल विद दिस कि आप लोग स्माइल करते हुए बेसिकली हेजिटेट करते हो बिकॉज आपको पता है कि आपके दांत बहुत स्ट्रेंड हैं एंड आपको लगता है कि यार आप लोग जब भी लोगों के सामने जाते हो तो जब आप हंसते हो तो लोग आपके दांत को देख के आपके ऊपर तनकीद करते होंगे या फिर बुरा समझते होंगे उसको. तो यार सिर्फ 7 डेज़ की ट्रीटमेंट से आप इस प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व कर सकते हो तो वाई नॉट गो अहेड एंड बाय दैट. तो उसकी भी मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा. एंड जनरली देखो यू हैव टू बी ब्रशिंग ट्वाइस अ डे एवरी सिंगल डे. एंड दूसरा ये कि अपनी टंग की हाइजीन की भी बहुत ज़्यादा केयर करो. इटर्नल ने इस वक्त कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की जो टंग स्क्रैपर्स होते हैं. मे बी एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर हम कर देंगे, लेकिन यू कैन डू दैट यूजिंग अ स्पून इफ़ यू वांट टू या फिर यूजिंग योर ब्रश. बट अपनी टंग की हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखो बिकॉज जब ये डेबरी आपकी ज़बान के ऊपर जमने लग जाते हैं ना, आप ये जितने भी दिन के अंदर खाने खा रहे होते हो तो उसकी वजह से बेसिकली ये स्मेल्स भी बनने लग जाती हैं. तो आई वांट यू टू अवॉइड दैट एट ऑल कॉस्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन. इसके अलावा फ्रेगरेंसेस आर ऑल्सो सुपर इम्पॉर्टेंट. देखो मैं खुद जो है वो बहुत शौकीन हूँ परफ्यूम्स का. मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ परफ्यूम्स एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड टू यू गाइज कि आप लोग भी जो है वो परफ्यूम्स का शौक अपनाएं. क्योंकि देखें खुशबू लगाना वैसे ही सुन्नत है एंड इसके अलावा वैसे भी आपके पास से अच्छी खुशबू आनी चाहिए बिकॉज लोग आपके इंप्रेशंस इसी बेसिस पे बनाते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि यार आप एक बजट के अंदर रहते हुए अच्छी फ्रेग्रेंसेस खरीदें तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको मिडिल ईस्टर्न ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है. मैंने पाकिस्तानी लोकल हाउसेज जितने भी देखे उनकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन इतनी अच्छी नहीं होती. जो मिडिल ईस्टर्न हाउसेज होते हैं उनकी सेम बजट और प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत अच्छी प्रोजेक्शन और लास्टिंग होती है. तो अगर आप उसको परचेस करना चाहते हो तो आई कैन सजेस्ट सम परफ्यूम्स टू यू गाइज. दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड व्हाटसोएवर. दीज आर 2 ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स जो सबसे ज़्यादा बैंग फॉर बक फ्रेग्रेंसेस हैं. नंबर 1 इज़ लताफ़ा फ़ख्र एंड नंबर 2 इज़ लताफ़ा वजूद. ये 2 फ्रेग्रेंसेस आर माई पर्सनल सिग्नेचर सेंट्स. आई वेयर फ़ख्र टू द जिम ऑल द टाइम एंड इट इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स. एंड दूसरा वजूद इज़ अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, अ लिटिल बिट मेटालिक, बट मुझे इस तरह लगता है कि बहुत मैस्कुलिन और रगड किस्म की फ्रेग्रेंस है एंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट रूम फिलर. तो इफ़ यूर इनटू दोज काइंड्स ऑफ एसेंट्रिक
kinds of fragrances, so I think you might really like them. Not a sponsorship again, not a sponsorship whatsoever. लेकिन if you want to buy that, तो आप वो पाकिस्तानी मार्केट से बहुत easily access कर सकते हो. मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए ये बोला था कि 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं इनको मैंने वैसे ही इन 3 पॉइंट्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, लेकिन एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं एंड वो आपकी वोकैबुलरी और आपकी प्रैक्टिस है. अब देखो, एक जो स्पेसिफिकली एक्सरसाइज मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि रोज़ के हिसाब से रीडिंग ज़रूर किया करो. सेल्फ हेल्प, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, एंड उसको रोज़ के हिसाब से एटलीस्ट एक चैप्टर ऊंचा पढ़ना शुरू कर दो. इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप वर्ड्स को कनेक्ट करना सीखोगे, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग दिन ब दिन इम्प्रूव करेगी, एंड इसके अलावा इट इज़ गोइंग टू बिकम नेचुरल फॉर यू टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. बिकॉज अक्सर क्या होता है कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के मौके नहीं मिलते, एंड अगर आप ये करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकोगे. आई नो कि इट्स नॉट द सेम एज कन्वर्सिंग विद समवन, बट एट लीस्ट इट्स वन स्टेप अहेड. अगर आप बुक की रिकमेंडेशंस जानना चाहते हो तो अगेन इस वीडियो के अंदर मैंने एक बुक आपको रेकमेंड की है, व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बाय जो नावारो. If you're into entrepreneurship like I am, so you can start reading .com Secrets by Russell Brunson, The 100 Million Trilogy by Alex Hormozi, 100 Million Leads, 100 Million Offers and 100 Million Money Models जो recently आई है. एंड ये किताबें अगर आप पढ़ते हो एंड ऊंचा पढ़ते हो तो इसकी वजह से ना सिर्फ आपके नॉलेज के अंदर इजाफा होगा, ना सिर्फ आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन की 10 साल की मिस्टेक से लर्न कर रहे होगे, बट एट द सेम टाइम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव कर रही होगी. तो यार मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ बहुत लेट लर्न की थी कि कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्किल्स इन द वर्ल्ड. मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जो मेरे से ज़्यादा काबिल हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे भी लोग देखे हुए हैं जो मेरे से कम काबिल हैं, और मैंने यही देखा है कि सब के अंदर सबसे कामयाब वही होता है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है. द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज we have to interact with people every single day. When we make money, we don't actually make money, we take money, and we take money from other people. And if we know how to navigate people, how to talk to people, how to persuade people, then not only are we going to have successful relationships, we're also going to have successful businesses, we're also going to have successful jobs, and we're going to be much more successful as a whole. So invest in your communication and invest in yourself, because it is going to pay dividends to you in the future. That is a promise from me to you. So Jigar, these were the exact 4 principles which turned me from an insecure man to someone who is respected every single time that I speak. Confidence and communication aren't just skills, they're actually currencies. And if you don't spend your time, energy and resources to build them, you will keep living in the background of your own life. और अगर आप और भी ज़्यादा confidence के बारे में जानना चाहते हो, and if you want to build unbreakable confidence and reduce your social anxiety by quite a bit, so you can go ahead and watch this video next, which is showing up on the I button right now. It is titled Give Me 16 Minutes and I Will Reduce Your Social Anxiety by 160%. It is also my most viewed video on this channel, and it has honestly garnered some pretty great results for people who have watched it. So you should go ahead and watch that video next. At the end, remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.